Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SST classes. So today we will be discussing the MCQs of federalism. Is that clear? So let's not waste more time and let's move towards the question. So Muskan, you can come on the screen and you can take the correct answer. Which among the following are examples of coming together federations? Okay. Yes, coming together federation is USA, Switzerland and Australia. So now let's move towards next question. Arif, union list includes subjects such as? Okay, very good. Defense, foreign affairs, banking, currency, communication, defense of the country, foreign affairs, international matters, banking, currency, finance matters are seen by the central government. Bittu? The system of Panchayat Raj involves village, block and district level. So in this area is known as the Panchayat Raj. Here three reactions to the language policy followed in India. Which of the following policy or which of the following holds true in the case of India? ये चार में से कौन सा ये तीन में से कौन सा इंडिया का केस सही है? The policy of accommodation has strengthened national unity. Language-based states have divided us by making everyone conscious of the language. The language policy has only helped to consolidate the dominance of English over all the other languages. No, only three options, okay? I removed one option because anyone? ये लैंग्वेज पॉलिसी ने जो इंडिया में फॉलो किया गया था उसने क्या किया? देश का स्ट्रेंथ बनाया है नेशनल यूनिटी में, या लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स डिवाइड किया सबको कि सबको अपने लैंग्वेज के बारे में कॉन्शियस बनाया, या ये पॉलिसी ने केवल इंग्लिश का डोमिनेंस बनाया पूरे देश भर में? गुड. द पॉलिसी ऑफ, एक प्रकार से जब हम लोग लैंग्वेज में ये अकोमोडेट कर रहे हैं ना हम लोग भाषा को, वी आर नॉट गिविंग एवरी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, बढ़ावा नहीं दे रहे हैं. काफी हद तक हम लोग ने लैंग्वेज पॉलिसी को मिला के रखा है ताकि देश भर में क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट ना आए जैसे श्रीलंका में आया था. फॉर एग्जाम्पल इन 1965, आई थिंक 1965 आई थिंक, ओके, जहां पे तमिल्स ने क्या किया था, अपोज किया था जब इंग्लिश लैंग्वेज क्या किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिए गए थे. ठीक है. सो लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोला था 1965 तक ही लगभग तुम्हारा इंग्लिश को क्या माना जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा. लेकिन ये जो पॉलिसी था इसमें जब लैंग्वेज को हटाने के बाद किया ऑफिशियल लैंग्वेज में, इट टुक अ वायलेंट यू कैन से मीन्स, यानी कि वायलेंट रूप में बदल गया. ठीक है. तो इसीलिए यू कैन से ये लैंग्वेज पॉलिसी ने एक प्रकार से हमारे देश को स्ट्रेंथ यानी कि यूनिटी बना के रखने में भी मदद किया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया. सिंपल, 22 लैंग्वेजेस. विच वेर द लेटेस्ट एडिशन इन दिस लैंग्वेज? लेटेस्ट मतलब सबसे आखिर में हुआ 4. तो भाई 18 थे, 18 के बाद 4 कितना होता है? 22. वो 4 भाषा है, बताओ.
डोगरी, मैथिली, डोगरी, मैथिली, and I think there is one Santhali and Bodo. Bodo is in Assamese, Maithili it's on Bihar, Dogri Uttarakhand, Himachal Pradesh people, and Santhali you can say it's from Jharkhand. The Constitution of India divided powers between center and states in 3 lists, divided powers between center and states into 2 lists, listed the powers of the states and left the undefined powers to the state, specified the powers of the states and left the residuary powers with the center. The Constitution of India power को divide किया between center and state in 3 lists, या divided powers between center and states in 2 lists, listed the powers of states and left the undefined powers to the states, या specified the powers of the space and left the residuary powers with the center. Okay, Satya Prakash. Satyam, go. Union concurrent. Is it correct जो सत्य प्रकाश लिखा है? Anyone? Do you think Satya Prakash has done the right answer? Given the right answers? Good. It has been divided into 3 states, 3 lists, that is union, state and concurrent. अब यहाँ पे ये divided powers between center and the state 2 list तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है. Listed the powers of states and left the undefined powers to the states, ये तो बिल्कुल नहीं है. सारा स्टेट्स का पावर डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ले करता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली क्लियरली ले किया है कि कौन से स्टेट का कितना पावर, यानी कि स्टेट्स का कितना पावर है, लिमिटेशंस क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है. यानी कि स्पेसिफाइड पावर नहीं दिया स्टेट को किसी भी, और लेफ्ट द रेसिडुअरी पावर्स विद द सेंटर. हाँ, रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास है, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट्स को स्पेशली पावर नहीं दी गई. 1-2 में एक्सेप्शंस है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द स्टेट्स आर enjoying the same power. अब जम्मू एंड कश्मीर है भी नहीं, अब वो स्टेट है भी नहीं. यस, इट्स नो मोर अ स्टेट. इट्स अ सेंसिटिव मैटर, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. गुड. बी लिटल जेंटल सत्य प्रकाश. ओके, डोंट बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सृष्टि, नो यू विल आंसर दिस. विच पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन स्टेट्स ऑफ द कंट्री? हमारे देश में किस साल से ही यू कैन से दिस वाज एन एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट, तो किस साल से हुआ था? कम सृष्टि. पीरियड आफ्टर 1990, 1990 के बाद के आने वाले साल में हुआ था, या पीरियड आफ्टर 2000 के बाद हुआ था, पीरियड आफ्टर 1980 हुआ था, या पीरियड आफ्टर 1970? ओके, वेरी गुड. पीरियड आफ्टर 1990. इससे पहले देयर वाज नो रीजनल पार्टीज, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला था हम लोगों को कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के मैटर्स में भी इंटरफियर करते थे, यानी कि स्टेट को दबाने का कोशिश करते थे, वो लोग का व्यूज को ऑप्रेस करने की कोशिश करते थे. लेकिन कोलिएशन गवर्नमेंट आया, यानी कि बहुत सारे रीजनल पार्टीज इमर्ज हुए, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट में अपने ही सरकार बनने लगी, सेंटर को छोड़ के अलग से. सेंटर में जो गवर्नमेंट था वो ही स्टेट में पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना रहे थे. ठीक है. विच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स? इसके बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं अभी. ओके जुनैद, you can come. Both A and B, A, B, C, D. Okay, union government, good.
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिड्यूअरी क्या है बेटा? केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़े होगे ये सब। रेसिड्यूअरी जो बचा कुचा, जैसे कि ओके फॉर एग्जांपल, अब ये रेसिड्यूअरी कैसे बचा? फॉर एग्जांपल अब कैसे बचा, सवाल भी आइए कैसे छूट गया? जैसे कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज when constitution was written of our country, you can say when the constitution of our country was written or drafted, at the time like there was various things like communication, yes, software, computer you can say, yes, computer technologies, या बहुत सारे जो टेक्निकल चीजें से रिलेटेड है जो कि उस दौर में प्रिवेल नहीं था, कंप्यूटर साइंस वगैरह। तो ये सब चीजें क्या हो गया था, छूट गया था। तो ये सब चीज को तो फिर नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग किस में डालते हैं? रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स में डालते हैं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। ओके, अब गवर्नमेंट ने उसको रेसिड्यूअरी में रखा, और हो सकता है कि हर साल कुछ ना कुछ रेसिड्यूअरी आने का चांसेस रहेगा। यस, एवरी ईयर वी आर गेटिंग प्रोग्रेस, वी आर बिकमिंग प्रोग्रेसिव। सो हो सकता है कि बहुत सारे नए नए ऐसे चीजें आए जो कि हम लोगों को दोनों तीनों लिस्ट में ना मिले, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? रेसिड्यूअरी में डालेंगे। हाँ, यस, इफ गवर्नमेंट वांट्स दे कैन पुट, जिस रेसिड्यूअरी में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसको हम लोग हो सके तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको ये तीनों में से किसी में एक में डाल सकता है। यस, इट डिपेंड्स। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम? कम आयु 25, 25, very good. State government has power of its own for which? स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर है, लेकिन किसके लिए? कम रिया, रीड द ऑप्शंस प्रॉपर्ली। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का इन चारों में से कौन सा पावर सही है अपने लिए? Which do you think she is correct? Okay, Subham. यही है पक्का? Okay, Subham is saying this is the right answer. Okay, anyone? Himanshu? Go. Both D and B. Why? Sometimes state go good. Both D and B, why is it? Okay. You are correct. This is also the correct statement. It is answerable to the people. आज के दिन में जो कुछ भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी बिल्स, कुछ भी एक्ट्स पास कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उसका जवाबदारी कौन रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। बट एट द सेम टाइम्स सर्टेन केसेस में दे आर नॉट आंसरेबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अपने स्टेट का अपना जुरिस्डिक्शन अपना है, वो टैक्सेस क्या कर सकता है अपने से, मतलब इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज करा सकता है, रेवेन्यू, ये सब चीज पे वो लोग अपने से हैंडल कर सकता है। बोथ बी एंड सी। Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own dash in specific matters. देखा जाए तो फर्स्ट टीयर, सेकेंड टीयर, थर्ड टीयर, तीनों टीयर गवर्नमेंट जो है वो पीपल को ही रूल कर रहा है। यस, लेकिन अब बट ईच हैज इट्स ओन डैश इन स्पेसिफिक मैटर्स, कुछ कुछ मैटर्स पे उनका अपना कुछ है। इनमें से क्या है? सत्यम? नो, इवन
Okay, jurisdiction. What is jurisdiction? Anyone can explain jurisdiction? It's a certain area जिसके अंडर या जिसके अधीन वो अपना नियम कानून या अपना पॉलिसीज को क्या कर सकता है, फॉलो करवा सकता है, उसको हम जुरिस्डिक्शन बोलेंगे. जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपना एरिया के अधीन में इट कुड हैव देयर ओन रूल्स एंड लॉज फॉर द स्टेट. अब ये कोई गारंटी नहीं है कि जो नियम कानून एक स्टेट में फॉलो हो रहा है वो दूसरे स्टेट में फॉलो हो रहा है. ठीक है. In the local government election, at least in local government elections, okay, यहाँ पे कॉमा दे रहे हैं, at least dash of all positions are reserved for women. One-third of the seats is reserved for the women in local. But there has not been any you can say provisions made for them in MP elections and all. Okay, I think it was वो 2008 में कुछ एक्ट हुआ है इसके ऊपर, वो कोलैप्स हुआ है वो बिल. वुमेन्स का जो रिजर्वेशन होना चाहिए MP इलेक्शंस में, ये सब के लिए लोकसभा में, तो वो जो बिल बन रहा था वो बिल जो हुआ कोलैप्स हो गया. ठीक है. 2010 आई थिंक. यस. When was the constitution amended to make the third tier of democracy more powerful and effective? Okay, Sharma ji. किस साल में किया गया था? Okay, it will be 1992. Okay, this is date is specific, याद रखना. Is specific. ठीक है अमन, 1992. You are somewhat close, लेकिन dates में close नहीं होना चाहिए. You should be accurate. As for English, -% Indians recorded in it as their mother tongue. Okay, Amitesh. 0.02%. Very good. Yes, we can say there are various, like I can also speak English, but that doesn't mean कि my mother tongue is English. My mother tongue is Nepali. Okay, your is different. Everyone has the different. हमारे देश में भले अंग्रेज शासन किया है, लेकिन उनमें से कुछ छूटे गए, उसको हम लोग एंग्लो इंडियंस कैटेगरी में मानते हैं. हाँ, वो लोग का थोड़ा कुछ पॉपुलेशन है जिसका मदर टंग क्या है, इंग्लिश है, एंड दैट इज वेरी लेस. हाँ, स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो सकते हैं, स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो सकते हैं. आज के दिन में बहुत सारे लोग इंग्लिश स्पीक करते हैं. यस, दे स्पीक इंग्लिश, बट मदर टंग मातृभाषा में देखा जाए तो 0.02 ही है. अभिषेक, डिस्ट्रीब्यूशन फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है? कुछ पावर दिए जाते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को. पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, करेक्ट आंसर. यस, पावर्स दिया जाता है. नेशनल गवर्नमेंट गिव्स, नेशनल गवर्नमेंट नहीं देता लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देता है. यस, ए यहां पे नेशनल गवर्नमेंट का बात हो रहा है. Does national government gives you power? The constitution gives you power. Constitution. Yes.
and that national government is also working under the constitution, rule of law. Yes. B, the powers is of legislative, executive and judiciary. Horizontal and so B, legislature, executive and judiciary. Horizontal, it can be practiced same level, and other one is state, sorry, center. Okay, wait, okay. Central, state and local. Vertical, central, state and local. They all have specified powers. Yes, and that specified power is given, it's already laid in the constitution. So that's why this won't be your answer. You have to बोला national government and the government which is ruling the country. तो क्या वो national government तुमको provincial powers देता है, provincials को, states को power देता है, या constitution देता है? Constitution देता है. तो simply ये correct incorrect हो जाएगा, and people will think हाँ, एक बार सोचोगे कि हाँ ये लग रहा है सही, बट नेशनल गवर्नमेंट के पास तो भाई रूल करने का अधिकार है, पावर बांटने का तो अधिकार नहीं ना है. हाँ, किसी को पावर देना है, किसी लेना है, उतना आसान नहीं है. दे हैव टू रूल, दे हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल, सेट्स ऑफ रूल्स दिए गए उसी के आधार पे फॉलो करना है. ओके, Prasun, I know you know the answer. Come, Prasun. Which language, सवाल ये है, in the data for scheduled languages of India? Scheduled languages. We are talking about scheduled languages. ठीक है? अब हो सकता है कि इनसे ज्यादा अधिक बोले जाने वाली भाषा भी हो, लेकिन we are talking about the languages which are in the recognized list of our constitution, यानी कि मान्यता प्राप्त वाले भाषाओं में है. तो कौन सा भाषा सेकंड बोला जाता है? In the data of scheduled languages of India, which is the second? Okay, Bengali. Anyone? Assertion. Panchayat Raj institutions were set up to decentralize planning to village level. Reason: village panchayats are in a better position to have a proper appreciation of the development needs. Satyam. No, not Satyam. Yuvraj. Good. Both A and R are true. ये दोनों assertion और reason दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है. ये लोगों को डिसेंट्रलाइज किया गया है और अपने को लोकली रूल करने का मौका दिया है, जिसकी वजह से वो लोग अपना डेवलपमेंट नीड्स खूब एप्रिशिएशन करके खूब मतलब पूरा कर सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड द प्रेसिडेंट द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स. सो डेमोक्रेसी मेंटेन्स सिविलियन सुप्रीमेसी ओवर द मिलिटरी फोर्स. Come. कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड द प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स. सही है? यस, ही इज द कमांडर ऑफ आवर आर्म फोर्स. यस, सुप्रीम कमांडर है. रीजन ये है, डेमोक्रेसी ये मेंटेन करता है सिविलियन सुप्रीमेसी ओवर द मिलिट्री फोर्स. क्या हम सिविलियन मतलब पीपल का सुप्रीमेसी ज्यादा है किससे? मिलिट्री फोर्स से हमारे इंडिया में. क्या ये सही है?
यस, इट्स करेक्ट। पीपल्स का ही सुप्रीमेसी ज्यादा है। आज के दिन में हमारा कंट्री कभी भी मिलिट्री रूल में नहीं आया है, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह में हुआ है। डू यू थिंक बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड द एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट? एनीवन? Come, I'll tell. You all are saying B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. What if I say it's a correct explanation of A? What if I say that reason is correct? Huh? Now come, anyone, you can. It depends upon you. तुम किस एंगल से देख रहे हो इसको? ध्यान सुनो, डेमोक्रेसी मेंटेन्स सिविलियन सुप्रीमेसी ओवर द मिलिट्री फोर्स। क्या ये इसको सटीक करता है? वाई? डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मिलिट्री फोर्स अगर डेमोक्रेटिक मेंटेन सिविलियन सुप्रीमेसी, मतलब मिलिट्री फोर्स अगर सुप्रीम होता तो उसके लिए अपना कमांडर होता, जो मिलिट्री का, जैसे कि परवेज मुशर्रफ था पाकिस्तान में, वो खुद से क्या करा रहा था? आर्मी को कंट्रोल कर रहा था। दैट मीन्स हमारे देश में जो आर्मी को कंट्रोल कर रहा है वो भी क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये सब नो, तो एक प्रकार से क्या ये रीजन जस्टिफाई कर रहा है? तो क्या होगा? ये एक्सप्लेनेशन भी सही होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझे? तो मिलिट्री फोर्स को प्रेसिडेंट कर रहा है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ लोकसभा ना। ये सब नो, सो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल को, तो पीपल ही किसको कंट्रोल कर रहा है? मिलिट्री फोर्स को भी कंट्रोल कर रहा है। मिलिट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट, इसलिए आजकल हमारे देश में क्या नहीं हुआ है, यू कैन से अभी तक क्या नहीं हुआ है? मिलिट्री कूप नहीं हुआ है, बिकॉज अब आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। हाँ, किसी जगह पे हम लोग गवर्नमेंट ही मिलिट्री रूल लगा सकता है कुछ साल के लिए, कि जैसे पाकिस्तान में जैसे गवर्नमेंट का तख्ता ही पलट दिया था, वैसा अभी हमारे देश में अभी तक नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? बट मेनी पीपल एक्सपेक्टेड, और ये भी किया था, बहुत सारे लोगों ने ये भी अनुमान लगाया था कि हमारे देश में मिलिट्री रूल आएगा, इंडियन मिलिट्री विल टेक अवे द गवर्नमेंट, ऐसा ही कुछ बातें हुई थी, तो अभी तक नहीं हुआ। अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके? Assertion: if the budget presented by the Rajya Sabha is not passed within, if the budget presented to the Rajya Sabha, जब भी कोई बजट प्रेजेंट किया गया राज्य सभा में, is not passed within the stipulated period, the budget proposals are not affected. In financial matters, the Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. ये बोल रहा है कि जो बजट प्रेजेंट किया गया, यू नो द रीडिंग ऑफ बिल, यस, जो रीडिंग स्टेज कंप्लीट होने के बाद वो कहा जाता है? वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी अगर कोई भी बिल जो होता है बेटा, राज्यसभा उसको क्या लाता है? प्रॉब्लम्स लाता है, यानी कि राज्यसभा दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो कभी कभी ज्वाइंट सेशन लगाते हैं। यस, तो यहां पे बात हो रहा है फाइनेंशियल बिल, यहां पे मनी बिल का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? मनी बिल। जो बजट प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा में, लोकसभा से पास होके आया है, राज्यसभा में चला गया, तो राज्यसभा दिए गए समय पे उस बजट का प्रपोजल नॉट पास विद इन, जब तक राज्यसभा पास नहीं कर रहा है उस बिल को, क्या उस बिल को इफेक्ट होगा? और बोल रहा है वो बजट को इफेक्ट नहीं होगा। एक प्रकार समझो, जो राज्यसभा में बिल दिया जाता है बजट का, वो बिल जो होता है बेटा, दिए गए समय पे अगर राज्यसभा उस पर कोई निर्णय नहीं लेता है, उससे उससे बजट को कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये असर्शन है। क्या ये सही है? हाँ, दिस इज एक्यूरेटली करेक्ट। मिनिमम 14 डेज का समय मिलता है राज्यसभा को मनी बिल को पास करने के लिए। ठीक है, अगर दिए गए समय पे अगर वो पास नहीं करता है, उसमें प्रपोजल को कुछ नहीं करता, तब उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इन फाइनेंशियल मैटर्स लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। दोनों सही है,
और एक्सप्लेनेशन सही है? यस, एक्सप्लेनेशन ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज बेटा मनी बिल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी बिल्स। मनी बिल्स को पास करने का अधिकार है जो गवर्नमेंट चला रहा है, फाइनेंशियल के पास क्या है? अधिकार है, लोकसभा के पास अधिकार है कि मनी बिल में तुमको प्रॉब्लम लगे या ना लगे, राज्यसभा अपोज कर सकता है, सजेशंस दे सकता है, लेकिन उस पे चेंजेस नहीं ला सकता है, उसको रोक के नहीं रख सकता है। समझ रहे? एक प्रकार से कहा जाए तो लोकसभा फाइनेंशियल मैटर में राज्यसभा से पावरफुल है, केवल मनी बिल में। अदर ऑर्डिनरी बिल्स में यस, राज्यसभा कैन अपोज, राज्यसभा कैन स्टॉप द बिल, उसमें ज्वाइंट सेशन लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नॉट इन मनी बिल। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। सो दिस वाज द फ्यू क्वेश्चंस फॉर टुडे, ठीक है? एंड यहां पे एक बार देख लेना, यू कैन से यहां पे एक सवाल भी पूछा गया है कि द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, डिस्टिंग्विशिंग यानी कि यहां पे मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग मतलब इस फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंटली तुमको फीचर्स कौन सा है, यही है कि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें तुमको सही भी हो यहां पे लग रहा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जब फेडरल फॉर्म पढ़ेंगे तो सबसे पहले पावर शेयरिंग का बात क्या दिमाग में आता है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल वाला स्पेसिफिक है, एकदम स्पेसिफिक रीजन है, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी दी करेक्ट, ठीक है? Distinguished features of federal government. The power is distributed among the legislature, executive and judiciary. Is that clear? If I am not wrong, anyone can. The distinguishing feature of federal government, यानी कि एक ऐसा फीचर बताओ फेडरल गवर्नमेंट को जो कि वो दूसरे से क्या करता है? अलग होता है। तो यही ना है, पावर इज शेयर्ड अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। So, this much for today. I hope you all understood. Thank you and stay safe, stay healthy.